Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we'll be doing cardinal symptoms of cardiovascular system and its diseases. So the first one is chest pain. So जो chest pain है, it can be due to cardiac cause and non-cardiac cause. And non-cardiac it can be like psychiatry related, like anxiety. Then it can be related to respiratory, musculoskeleton, or skeletal or GI system. Now, cardiac causes can be angina, MI, valvular diseases, pericarditis, or HOCM. Then, in emotional, it can be anxiety, depression. Then, vascular, it can be aortic dissection. Pulmonary, it can be pleuritis, pneumothorax, pulmonary embolism, and pneumonia. GI, it can be reflux, hernia, hiatus, peptic ulcer, cholecystitis, and pancreatitis. Musculoskeletal, it can be costochondritis, arthritis, spasm, or any bone tumor. Neural, it can be shingles. Now, differential diagnosis. So, there are some potentially life threatening causes and there are some non life threatening causes. So, we can the causes are same as we did in this figure. Then, what are the differentiating features of ischemic cardiac pain and non cardiac pain? So, the ischemic cardiac pain is central, diffuse, tight, squeezing, dull, constricting, choking, heavy. It can be precipitated by exertion, emotion, radiate to jaw, neck, shoulder, relieved by rest and nitrates, and associated with breathlessness and diaphoresis, and it is exact opposite in non cardiac pain. Then there are some differentiating features which we can differentiate based on the Socrates method, which is site, onset, character, radiation, associating features. Then you have the timing, aggravating and relieving factors, and severity. So if we see acute coronary syndrome, we did it above. फिर pulmonary embolism में it is heaviness or tightness and it may involve whole chest or focal. It doesn't radiate and it can be associated with dyspnea. Aortic dissection is ripping, tearing pain in a substernal or midline area, and it can be associated with secondary arterial branch occlusion leading to paraplegia and radiates to interscapular area. Then we have pericarditis or cardiac tamponade. The pain is sharp, constant, or pleuritic. Also substernal, associated with fever, dyspnea, friction rub. Pneumothorax is sudden, sharp, pleuritic pain. It will be on one side of chest, radiating to shoulder, back, associated with dyspnea. Then you have perforated esophagus, which is sudden, sharp pain after forceful vomiting. It is substernal, radiates to back, and is associated with dyspnea, diaphoresis, and signs of sepsis. So now we did angina. What are the types of angina? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एंजाइना. तो एंजाइना एमआई का सिम्टम होता है जिसके फीचर्स पेन के हमने अभी देखे थे. इट कैन बी स्टेबल विच इज़ कि मतलब ये सिर्फ एक्सर्शन पे होगा एंड देर इज़ नो डिटोरिएशन इन फ्रिक्वेंसी, सिवियरिटी और ड्यूरेशन. अनस्टेबल होता है कि ये अगर ये रेस्ट पे हो रहा है इट मतलब रेस्ट पे हो सकता है एंड लास्टिंग मोर देन 10 मिनट्स. इट इज़ सीवियर एंड ऑफ न्यू ऑनसेट एंड क्रिसेंडो पैटर्न में होता है, मतलब कि इसकी सिवियरिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन बढ़ती जाती है. देन देर इज़ वेरिएंट या प्रिंसमेटल एंजाइना विच इज़ ड्यू टू कोरोनरी वेसोस्पाज्म. देन देर इज़ माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना और कार्डियक सिंड्रोम एक्स. इसमें क्या होता है कि एंजियोग्राफी पे जो एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन देर इज़ एंजाइना लाइक चेस्ट पेन. देन देर इज़ एपिसोडिक, तो मतलब कुछ इंटरवल्स पे होता है. देन देर इज़ नॉक्टर्नल विच इज़ सीन इन सीवियर AR. देन वी हैव एंजाइना डी क्यूबिटस जो कि सिर्फ लेटने पे होता है एंड इसका कोई अपेरेंट कोज नहीं होता. देन वी हैव सेकेंड विंड और वार्म अप एंजाइना. ये क्या है कि मतलब अगर किसी को एक्सर्शनल एंजाइना या IHT है तो उन्हें मतलब काम करना छोड़ना पड़ेगा एक एंजाइना के अटैक के बाद.
देन वी हैव लिंक्ड एंजाइना, जो बाकी डिसीजेस के साथ लिंक्ड हो सकता है, विच कैन बी गैस्ट्रोइसोफेजियल, ड्यूडेनल, गोल ब्लैडर डिसीजेस और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस. देन देर इज़ रिफ्रैक्टरी एंजाइना, जो कि मेडिकल थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है, एंड रिवेस्कुलराइजेशन भी नहीं हो सकती है. देन वी हैव स्टेटस एंजाइनोसिस. इट इज़ periods of frequently recurring anginal pain at rest. देन वी हैव विंसेंट्स एंजाइना. तो इसमें क्या है, देर इज़ इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड पैलेटाइन टॉन्सिल. देन वी हैव लुडविग्स एंजाइना. ये क्या आता है, इट इज सेल्यूलाइटिस, सीवियर डिफ्यूज, acute onset, and it affects submandibular, sublingual and submental spaces. Then we have abdominal angina, which is postprandial pain. It occurs in mesenteric vascular occlusive disease. Then we have angina sign dolor. इट इज़ पेनलेस एपिसोड, जो कि डायबिटीज़ या फिर ओल्ड एज में दिखता है. इसको साइलेंट इस्कीमिया भी बोलते हैं. एंजाइना की एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन दी गई है बाय कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी, जिसमें 4 क्लासेस होती है. पहला इस कि सिर्फ स्ट्रेनस एक्सरसाइज या एक्सर्शन पे एंजाइना होगा. क्लास 2 इज़ लाइट लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी. सिम्टम्स आते हैं ऑन वॉकिंग अप द हिल, वॉकिंग अप द स्टेयर्स, कोल्ड वेदर में, विंड में या स्ट्रेस में. देन क्लास 3 में देर इज़ मार्क्ड लिमिटेशन, मतलब 100 यार्ड्स चलने पे भी हो जाएगा. क्लास 4 इज़ इनएबिलिटी टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी. इस पे रेस्ट पे भी एंजाइना होता है. एंजाइना इक्विवेलेंट क्या होता है एल्डरली और डायबिटिक्स में, मतलब जो इस्कीमिक एंजाइना एब्सेंट है तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिनकोप, जीआई सिम्टम्स वगैरह आते हैं. सो दिस वाज अबाउट चेस्ट पेन. नाउ कमिंग टू पेल्पिटेशन. तो पेल्पिटेशन क्या आती है, इंक्रीज्ड अनकम्फर्टेबल अवेयरनेस ऑफ वंस ऑन हार्ट बीट, या फिर सेंसेशन ऑफ स्लो, रैपिड या इरेगुलर हार्ट रिदम. तो क्या है कि पेल्पिटेशन और एरिथमियास ऐसा नहीं, मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है फॉर ईच अदर. नाउ जो कॉजेस है, इट कैन बी कार्डियक, उसमें इट कैन बी अरिथमियास और एनी स्ट्रक्चरल डिसीज. इट कैन बी साइकोसोमेटिक, इट कैन बी हाई आउटपुट स्टेट, ड्रग इंड्यूस्ड, एंडोक्राइन या फिर मिसलेनियस, जिसमें भी है स्ट्रेस, हाइपरवेंटिलेशन, पीएमएस, स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी. सो जो पेल्पिटेशन है, it can be extrasystolic, tachycardiac and anxiety related palpitation. associated features हो सकते हैं अलग अलग तरह की palpitation के, जैसे अगर AV नोडल री एंट्रेंट टेकीकार्डिया है तो उसमें मतलब क्या है, सडन चेंज ऑफ पॉस्चर के बाद palpitations होती है. डिस्क्रिप्शन, मतलब अलग अलग तरह की palpitation होती है, जैसे मतलब डिस्क्रिप्शन क्या आती है, देयर कैन बी फ्लिप फ्लॉपिंग इन चेस्ट, रैपिड फ्लटरिंग इन चेस्ट या फिर पाउंडिंग इन नेक. सो दिस वाज अबाउट so palpitation. So this is what we have to ask in like palpitations: onset, character, associated features, timing, exacerbating or relieving factors and severity. So जो types है, it can be extrasystole. टेकीकार्डिया में इट कैन बी साइनस टेकीकार्डिया या सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया. देन इट कैन बी एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया. तो जो ऑनसेट है, साइनस टेकीकार्डिया के अलावा सबका सडन होता है. देन जो कैरेक्टर है, मोस्टली एवरीथिंग इज रेगुलर एंड फास्ट एक्सेप्ट एट्रियल फिब्रिलेशन. देन एसोसिएटेड फीचर्स, साइनस टेकीकार्डिया के साथ एंजाइटी एसोसिएटेड होती है. एसवीटी के साथ पोलीयूरिया, लाइट हेडेडनेस, चेस्ट टाइटनेस होती है. सेम इज विद एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया. सो एसोसिएटेड में हमें याद करना है पोलीयूरिया, सिनकोप, चेस्ट टाइटनेस. टाइमिंग एक्स्ट्रासिस्टोल में ब्रीफ होती है, साइनस टेकीकार्डिया फॉर फ्यू मिनट्स. एसवीटी लंबा चल सकता है. एएफ एंड वीटी आर वेरिएबल. जो एक्स्ट्रासिस्टोल है, इट इज़ exacerbated by fatigue, caffeine, alcohol and relieved by walking. साइनस टेकीकार्डिया भी ट्रिगर्ड बाय एंजाइटी और एक्सरसाइज. एसवीटी रेस्ट पे भी हो सकती है एंड कुछ भी मूवमेंट ट्रिगर कर सकती है. वेगल मैन्यूवर्स कैन रिलीव.
AF, same. Exercise alcohol may trigger, and same with ventricular tachycardia. Dyspnea we did in the last video of respiratory system. Then we have syncope. So syncope क्या होता है? Transient loss of consciousness ड्यू टू inadequate cerebral blood flow, और इसमें postural tone का भी loss हो जाता है, and it returns spontaneously to baseline neurological function. Pre-syncope क्या होता है? Light headedness. So then we have classical vagovagal syncope, which is triggered by emotional या orthostatic stress, जैसे कि वेनी पंचर या कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई या फियर ऑफ एनी इंजरी या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, हीट एक्सपोजर और एक्सर्शन. मैकेनिज्म क्या है? सेरिब्रल मतलब आर्टरीज की ग्लोबल हाइपोपरफ्यूजन हो सकती है, या फिर जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसकी फोकल हाइपोपरफ्यूजन हो सकती है. एंड इंसिडेंस इंक्रीजेस विद एज. देन वी हैव कॉजेस क्या होते हैं? एक तो ट्रू सिनकोप होता है, देन वी हैव सूडो सिनकोप. तो ट्रू सिनकोप के कार्डियक कॉजेस क्या होते हैं? इट कैन बी एरिथमिया या स्ट्रक्चरल डिसीज या कोई भी कार्डियो पल्मोनरी डिसीज. देन नॉन कार्डियक कॉज में इट कैन बी न्यूरोकार्डियोजेनिक, जैसे कि वेगोवेगल सिनकोप. देन इट कैन बी ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन या न्यूरोवेस्कुलर सिनकोप. In pseudosyncope, it can be seizures, then any metabolic abnormality जैसे hypoglycemia, then it can be neurological जैसे SAH या TIA, then it can be psychogenic या drug induced. So this was about syncope and pre-syncope. Then we have pedal edema. तो edema क्या होता है? Abnormal fluid collection in interstitial space, जिसकी मतलब जो फिजियोलॉजिकल लिम्फेटिक ड्रेनेज की कैपेसिटी से ज़्यादा. अप्रोच क्या आती है टू पीडल इडीमा? अगर पीडल इडीमा है, वी विल सी यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है. अगर यूनिलेटरल है और अक्यूट है, इट कैन बी DVT, सेल्यूलाइटिस या कंपार्टमेंट सिंड्रोम. अगर क्रॉनिक है, इट कैन बी वीनस इंसफिशिएंसी या लिम्फेडीमा. बाईलेटरल में अगर अक्यूट है, इट कैन बी ड्यू टू ड्रग्स. अगर क्रॉनिक है, इट कैन बी सिस्टमिक या नॉन सिस्टमिक. सिस्टमिक में इट कैन बी हार्ट फेलियर, लिवर डिसीज, रीनल डिसीज, OSA. नॉन सिस्टमिक में इट कैन बी ड्रग्स, वीनस इंसफिशिएंसी, लिम्फेडीमा, पेल्विक ट्यूमर और इडियोपैथिक. सो व्हाट डू वी आस्क इन पीडल इडीमा? साइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूनिलेटरल और बाईलेटरल उसमें आ जाएगा. इट कैन बी ड्यूरेशन, तो एक्यूट और क्रॉनिक आ जाएगा. सो इट कैन बी एसोसिएटेड विद पेन इन DVT एंड सेल्यूलाइटिस. वेरिएबल हो सकता है, जैसे अगर CHF या वीनस इंसफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, इट विल बी एग्रीवेटेड बाय स्टेंडिंग एंड इट विल बी इम्प्रूव्ड विद लिम्ब एलिवेशन. देन अगर देयर इज हिस्ट्री ऑफ एनी सिस्टमिक इलनेस, तो उससे हमें एटियोलॉजी पता चल सकती है. देन वील आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, ट्रोमा, रेडिएशन, एंड देन देयर कैन बी मिसलेनियस कॉजेस जैसे कि OSA by causing right ventricular failure. Then और सिम्टम्स क्या आते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के? अगर लो कार्डियक आउटपुट है, इट कैन बी फटीग, डिजीनेस एंड सिनकोप. अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, देयर कैन बी एक्सर्शनल फटीग, चेस्ट पेन एंड डिस्निया. अगर फीवर है, इट कैन बी रूमेटिक फीवर या IE, एंड देयर कैन बी सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर जैसे फटीग, एनोरेक्सिया, वेट गेन, लेग स्वेलिंग, एक्सर्शनल फटीग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, perspiration, confusion, cough, hemoptysis and wheezing. So this was about cardinal symptoms of cardiovascular diseases.